کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر، ٹماٹر کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی۔ 70 روپے کلو ملنے والا ٹماٹر اب 130 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بیوپاریوں کا دعویٰ ہے کہ ٹھنڈ سے مقامی فصل متاثر ہو گئی۔ افغانستان اور ایران سے سپلائی بند ہے۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ شہر میں ٹماٹر کی قیمت پھر تیزی سے بڑھنے لگی۔ گزشتہ اتوار تک 70 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والا ٹماٹر مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ لی مارکیٹ سبزی منڈی کے بیپاریوں کے مطابق ٹھنڈ میں اضافے کے باعث مقامی فصل متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رسد کم ہو گئی۔ افغانستان اور ایران سے بھی ٹماٹر کی سپلائی معطل ہے۔ ایران بھی آ رہا تھا اور سندھ کا ٹماٹر بھی آ رہا تھا، تو ریٹ کافی سمجھو کم ہوا تھا، 50 60 70 تک یہ ریٹ چل رہا تھا۔ ابھی جو ہے ایرانی ٹماٹر بند ہو گیا، مزید ٹماٹر جو ہے ریٹ بڑھ گیا۔ اپنا مال جو ہے ملک کا وہ ابھی فی الحال کم ہے، جو موسم تھوڑا گرمی ہو جائے گا مال زیادہ آ جائے گا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخنامے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ سمجھ ہی نہیں پڑی ان کی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا، اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ابھی 70 روپے کلو تھا اور ابھی 170 روپے، بہت ڈفرنس ہے ہر چیز میں۔ پیاز میں زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اس کا بھی سمجھ نہیں پڑ رہی۔ تو باہر سے بھی مال آ رہا ہے، ایران سے مال آ رہا تھا تبھی وجہ، ابھی نہیں آ رہے تو مہنگا ہو رہا ہے نا۔ بیپاریوں کے مطابق ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق سے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی متحرک بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے سولجر بازار میں ترقیاتی کام جاری۔ سیوریج کے درہم برہم نظام کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سولجر بازار کی اندرونی سڑکوں پر پیور بلاک لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہے کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں سولجر بازار میں، اور یہاں پر پیور بلاک جو ہے اندرونی گلیوں اور مرکزی سڑک پر بھی جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ سیوریج کے درہم برہم نظام کو بھی جو ہے یہاں پر درست کیا گیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر اس وقت کراچی کے تمام اضلاع میں جو ہے وہ محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے ترقیاتی کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ سولجر بازار میں اس وقت کام جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے یہاں پر جاری ہے، اور ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ رواں ماہ جو ہے شہر میں جاری تمام ترقیاتی کاموں کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ ہمارے ساتھ سولجر بازار کے ایک معززین بھی موجود ہیں یہاں پر، کچھ اور علاقے سے بھی جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کتنے عرصے بعد سولجر بازار میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے؟ 20 سال کے بعد ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہاں پر سولجر بازار میں۔ پہلے نہیں ہوئے، نہ سیوری کا نظام بہت تباہ حال تھا، روڈوں کا حال بہت تباہ حال تھا۔ خاص کر اس سیزن میں جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے گڈھے، بہت حادثات ہوئے ہیں۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں میئر صاحب کا، انہوں نے یہ کام شروع کرایا ماشاءاللہ۔ بہت ہمارے پیچھے یہاں پر بھی گلیوں میں سارا فلورنگ ہوئی ہے، ساری گلیوں کے اندر روڈوں جو سائیڈ روڈ ہے ان کے اوپر بھی اچھی خاصی فلورنگ کا بڑا کافی کام ہو رہا ہے۔ بہت مہربانی ہے ان کی کہ ہمارے علاقے کو انہوں نے دیکھا، اور تمام گلیاں تقریباً پیور لگ چکا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں ان کے۔ اور جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ سولجر بازار کی لگ بھگ تمام گلیوں میں جو ہے وہ پیور لگ چکا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے وہ مسائل کا گڑھ بن چکا تھا۔ بارشوں کے بعد جو ہے یہاں پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے تھے، جس کا میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے نوٹس لیا، اور میئر کراچی کے احکامات پر جو ہے یہاں پر ترقیاتی کام جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں۔ تمام تر معاملے پر بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر کے تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ ملا جلا مگر مجموعی طور پر مثبت رہا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بہتر ہوا۔ اہم معاشی اعداد و شمار نے مارکیٹ کو سہارا دیا، اور 100 انڈیکس نمایاں اضافے کے بعد 1,61,935 پر بند ہوا۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ آٹو سیکٹر نے رفتار پکڑ لی، معاشی اعداد و شمار مثبت اور سیاسی ماحول بھی بہتر، سرمایہ کاروں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی۔ اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور مضبوط ہفتہ گزارا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता सरमायाकारों के लिए खुशगवार साबित हुआ। 7 रोज के दौरान मार्केट में भरपूर तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1.26% इजाफे से 2342 पॉइंट्स ऊपर गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,61,935 पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,62,118 जबकि कम तरीन सतह 1,57,203 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मार्केट में तेजी की बुनियादी वजह माशी अदाद-ओ-शुमार का बेहतर होना और सियासी सतह पर निस्बतन बेहतरी है। सरमायाकार एक बार फिर मार्केट की जानिब लौट रहे हैं, जिसका असर रोजाना की ट्रेडिंग में भी वाज़े नजर आ रहा है। एक तो 27वीं तरमीम जो है वो अप्रूव हो गई है। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड की तरफ से इस दफ़ा आपने देखा कि पहले सेलिंग थी, अब बाइंग की तरफ आ गए हैं। और IMF की किस्त के हवाले से $1.2 बिलियन की जो किस्त है वो दिसंबर में मिलने का इम्कान है। तो ये 3 फैक्टर है मार्केट को जिसकी वजह से मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। इसकी वजह तो सियासी हालत जो है इसे दुरुस्त होना शुरू हो गए, हुकूमत को अपनी कामयाबी मिली है। दूसरा ये कि सरहदी हालत भी कुछ बेहतर होना शुरू हो गए इसकी वजह से, और मार्केट अपने बहुत ज़्यादा 12,000 पॉइंट नीचे हो गई थी। इसकी वजह से भी बाइंग लोगों ने बाइंग अब नीचे रेट पे करना शुरू कर दिया है। कारोबारी हफ्ते के दौरान 3 अरब 84 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जिनकी मालियत 177 अरब रुपए से जायद रही। मार्केट की मुस्तहकम कारकर्दगी का असर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी पड़ा और शेयर्स की कीमत बढ़ने से 146 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,433 अरब रुपए पर जा पहुंची। माशी महाज पर भी मुस्बत इशारे सामने आए। अक्टूबर 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियाद पर 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस माह गाड़ियों की कुल फरोख्त 17,333 यूनिट्स रही, जबकि रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में ऑटो सेक्टर ने 46% इजाफे के साथ 59,600 यूनिट्स की फरोख्त की। इसके अलावा टी बिल्स की नीलामी में कट ऑफ यील्ड भी मुस्तहकम रही, जिसने सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ा दिया। अशरफ खान, T21। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात रंग लाने लगे। रुपए की कदर में इजाफा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $2 करोड़ 20 लाख का इजाफा हुआ है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 280.82 रुपए से कम होकर 280.72 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ। मार्केट में डॉलर 281.85 रुपए से कम होकर 281.75 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपए 3 पैसे रह गया। एक हफ्ते में यूरो 1.76 रुपए महंगा होकर 329.66 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 77 पैसे सस्ता होकर 372.31 रुपए पर आ गया। एक हफ्ते में UAE दरहम 77 रुपए 42 पैसे पर ही बरकरार रहा। सऊदी रियाल 2 पैसे बढ़कर 75.59 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $2 करोड़ 20 लाख का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 52 करोड़ 40 लाख हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3.90 करोड़ इजाफे से 5 अरब 19 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़खायर 6.10 करोड़ इजाफे से 19.72 अरब हो गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। आज दुनिया भर में बर्दाश्त का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और नज़रियात के दरमियान अमन रवादारी को फ़रोग़ देना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बर्दाश्त ही माशरती हम आहंगी और तरक्की की बुनियाद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बर्दाश्त अमन का रास्ता। बर्दाश्त का बैनुल-अक़वामी दिन दुनिया भर में हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले यूनेस्को की जानिब से 1995 आलमी सतह पर मनाने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही एक करारदाद मंजूर हुई थी, जिसमें बर्दाश्त या हम आहंगी को ना तो खुशी और ना हमदर्दी के फुकदान से जोड़ा गया था। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है।
اب हर एक इंसान के पास इजी एक्सेस है कि वो चाइना को भी देख सकता है, वो अमेरिका को भी देख सकता है, वो दुनिया के किसी भी गांव को एक क्लिक पे ऑन करके देख सकता है। तो इस तरह की चीजें जब हम देखते हैं और उमूमी तौर पर जब हम उनको हासिल नहीं कर पाते, या जो हमारे दिलों में जो एक ख्वाहिश उभरती है, हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उस बुनियाद पे जब वो चीजें या ख्वाहिशात हमारी पूरी नहीं होती, तो इससे भी अदम बर्दाश्त जो है वो ज्यादा हो रहा है। इसे दुनिया भर के लोगों की तहजीब और तर्ज जिंदगी के लिए इज्जत बावकार शनासाई करार दिया गया था। बर्दाश्त का बैनुल अक़वामी दिन हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करें और मिलजुल कर बेहतर माशरा तश्कील दें। और हमारा निसाब जो है वो भी अदम बर्दाश्त तक़वियत देता है, टीचर्स का माइंड सेट भी, मीडिया का मैसेज भी। तो ये मजमूई तौर पे सोसाइटी का मसला है कि जब तक रियासत की आला सतह पे अदम बर्दाश्त के मसले को महसूस नहीं किया जाएगा और उसके खात्मे के लिए कोशिशें नहीं होंगी और निचली सतह तक ये मसला नहीं आएगा, जब तक ये मामला हल नहीं होगा। आए हम सब मिलकर बर्दाश्त को अपनी जिंदगियों में अपनाएं और एक ऐसी दुनिया तख्लीक करें जहां अमन, मोहब्बत और हम आहंगी हर कदम पर मौजूद। खबर आपको दें कि ओशियानिक क्रूज पर स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए खुशियों और मोहब्बत से भरपूर खुसूसी टूर का एहतमाम किया गया। पढ़ो खेलो पाकिस्तान और कराची ऑटिज्म ग्रुप के इश्तराक से होने वाला टूर बच्चों के लिए यादगार तजुर्बा साबित हुआ। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख। जी अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो है कि हमारी यहाँ पे कोस्ट गार्ड से जो है एक क्रूज जा रहा है, जहाँ पे जो नीडी बच्चे हैं, यहाँ पे जो माजूर बच्चे हैं, उनको टूर करवाया जा रहा है। ओशियानिक क्रूज यहाँ से गुजरेगा जो कि समंदर में जाएगा और बच्चों को खूबसूरत जो लम्हात है वो याद करवाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कि आज जो आप लोगों ने इतना खूबसूरत सा टूर प्लान करा है, इसके पीछे क्या मकासद है? आज का टूर हमने उन बच्चों के लिए रखा है जिनको माशरा जो है वो नज़रअंदाज करता है और उनके लिए आज तक किसी ने इस किस्म की पिकनिक का ना सोचा है ना किया। हमने यहाँ पे तकरीबन 70 के करीब फरिश्ते इकट्ठे किए हैं जो कि हमारे साथ क्रूज़ पे जाएंगे। हमने इसके लिए 2 क्रूज़ बुक कराए हैं और इसमें जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनके हमने कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, और हम इसके पहले उनको ज़ू भी लेके जा चुके हैं और इसके अलावा उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल भी कराए हैं, उनको पीका बेयर भी लेके गए हैं, इस टाइप की बहुत सी जगहों पे लेके गए हैं। इसके अलावा हमारा एक स्कूल भी है शाह फैसल कॉलोनी में स्पेशल नीड्स बच्चों का, जहाँ पे हम उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपीज़ और स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहते हैं और पढ़ो खेलो पाकिस्तान के इश्तराक से यहाँ पर जो है क्रूज़ का इत्माम किया गया उन बच्चों के लिए जो कि चल नहीं सकते या फिर वो नीडी बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर ये क्रूज़ जो है रवाना हो जाएगा समंदर में और समंदर की मौजों से बच्चे जो है खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी, शहर कायद में चीनी का भाव कम ना हो सका। होलसेल में चीनी 176 से 180 रुपये, रिटेल में 190 से 200 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने चीनी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह कराची में भी चीनी के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। होलसेल मार्केट में भी चीनी 176 रुपये फी किलो पर फरोख्त हो रही है, जबकि रिटेल की सतह पर चीनी 190 से 200 रुपए किलो में मैसर है। इस पर यकीनन शहरियों का मुतालबा है कि जो सरकारी कीमतें उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सरकार ने चीनी इंपोर्ट भी की, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में चीनी के दाम कम नहीं हो सके। इस पर मेरे साथ रिटेलर फरीद कुरैशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। फरीद साहब, चीनी इंपोर्ट भी हुई, फिर मकामी चीनी की जो क्रशिंग सीजन है वो भी शुरू हो चुका है, चीनी क्यों सस्ती नहीं हो पा रही? लेकिन ये होलसेल का मसला है और शुगर मिलों का मसला है। उनको चाहिए कि वो रेट कम करेंगे तो लाजमी बाजार रिटेल में आवाम के लिए सहूलत होगी, और वो बिला वजह के इशू बना लेता है, माफिया काम करता रहता है। हुकूमत को चाहिए सबसे पहले इस माफिया को बंद करे और उस तमाम अशिया उसकी कीमतों पर मुनहसर किया जाता है। तो इसके लिए बोर्ड बैठाया जाए या कमीशन हो, ताकि जो रोज़ाना चीनी के ऊपर बहस होती है वो मुनासिब नहीं है, और आइटम भी है उसको देखा जाए ताकि आवाम को अब चीनी जब अगर क्रैशिंग शुरू हो गई है तो लाजमी बात है कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है कंट्रोल रेट से ज़्यादा बिक रही है।
फरीद कुरैशी मौजूद थे। वाज़ेह बता दें कि क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिला। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम बनाया जाए। जी। शहर का मसरूफ तरीन मारविक रोड गंदे पानी में डूब गया। शाहरा पर फायर हेड क्वार्टर और उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस वाक़या हैं। ओल्ड सिटी एरिया से 4 बड़े सरकारी अस्पतालों, यूनिवर्सिटी और फायर ब्रिगेड हेड क्वार्टर आने व जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट साउथ की मसरूफ तरीन शाहरा मारविक रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मारविक रोड जो कि ओल्ड सिटी एरिया, ख़ास तौर पे रणछोड़ लाइन की बात की जाए या लियारी की बात की जाए, वो शहर को जोड़ने का ये वाहिद सड़क है और इसके साथ साथ ये वाहिद शाहरा है जो कि सिविल हॉस्पिटल की तरफ भी जाती है, ट्रामा सेंटर की तरफ जाती है, बंस वार्ड की बात की जाए या SIUT, उसका ये वाहिद रास्ता है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखा सकें इसकी सूरत हाल इंतहाई दगरगों है। सेवरेज के पानी से ये भरी हुई है गुज़िश्ता कई रोज से, और इस शाहरा पर जो है वो फायर ब्रिगेड का हेड क्वार्टर भी है और इसके साथ साथ मौलवी अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ तिजारती लिहाज से भी ये इंतहाई मसरूफ शाहरा तस्वुर की जाती है, जो कि इंतजामिया की नज़रों से, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नज़रों से ओझल है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कब से ये सूरत हाल है और वजह क्या है? सर ये तकरीबन 2-3 महीने से मामूल बना हुआ है। रिसेंटली अभी ये सारी नई लाइनें डल चुकी हैं यहाँ पे, लेकिन मेन इशू ये आ रहा है कि शाइन कम्प्लेक्स के पास इसका जो है ना वाटर पंप का जो है पंपिंग स्टेशन है वो बंद हो जाता है लाइट के दौरान, लोड शेडिंग जब हो जाती है। उसके बाद वहाँ जनरेटर मेरे ख्याल में चलते नहीं होंगे, जिसके बाद ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। अब ये ऐसा दर्द सर बन गया आवाम के लिए, जिसमें फायर ब्रिगेड भी परेशान है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, ट्रामा सेंटर है, और जितने भी तलबा वगैरह आते हैं यहाँ से परेशानी की हालत में जाते हैं, एक कभी इधर से कभी उधर से। कल तो ये हुआ कि एम्बुलेंस यहाँ से कल्टी होते होते रह गई है, और उसी एक 2 हफ्ते पहले जो है यहाँ से स्कूल वैन जा रही वो भी कल्टी हो चुकी है, जिसमें तमाम बच्चों के कपड़े जो गंदे हुए। पंपिंग का सिस्टम जो है वो बंद होने के नतीजे में यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है और लाखों और हज़ारों अफराद जो है यहाँ से जो जिनकी आमदरफ्त होती है, और कारोबारी तबका और रिहायशी तबका जो है वो लाखों अफराद यौमिया बुनियाद पर मुताजी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के दौरे पर रवाना। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, मेयर और दीगर वज़रा हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त शहर के दौरे पर हैं और सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आला के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी काजवे पर पहुंचकर कोरंगी की जो तामीराती काम है उसका जायजा लिया है और ज़ेर तामीर कोरंगी काजवे के ब्रिज को भी देखा है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरंगी काजवे पुल की तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से एक ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया है कि 85% जो है ये काम अब फिजिकली मुकम्मल हो चुका है और मंसूबे की माली पेशरफ्त 74% मुकम्मल हो चुकी है। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक के 334 फाइल, 10 एक्स्ट्रा फाइल और 612 गेडर्स जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। 51 में से 51 स्पैन जो है इसके मुकम्मल हैं। डेस्क स्लैब जो है 51 में से 43 जो है मुकम्मल हैं। रैप ए और रैप बी की इक्विपमेंट का काम जो है इस वक्त मुख्तलिफ मराइल में जारी है। पुल की कुल लंबाई जो है 1.4 किलोमीटर है। इस मंसूबे के हवाले से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि काम की रफ्तार को मजीद बढ़ाया जाए। ये मंसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमायां बेहतरी लाएगी। इस मौके पे सेक्रेटरी की लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध अब कोरंगी काजवे से निकल चुके हैं शहर के दीगर इलाकों की जानिब और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।